Uh, I think yesterday you told me coordination compound have been covered. Am I right? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हो गया तुम्हारा क्लास पे. हाँ सर. ठीक है. ट्राई करो तो. What is the brown ring compound exactly? Fe H2O whole 5 NO SO4. ये तो है. Primary valency is basically the oxidation number. As sulfate is -2, what is a neutral ligand and NO is a positively charged ligand. So iron should be in +1 state. So the primary valency is 1. As 6 monodentate ligands are attached, so the secondary valency is 6. इसका आईपीसी नेम बता सकते हो? हाइब्रिडेशन क्या होता है? दिस sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल होगा. And what is the magnetic moment? √15. Now, can you of you tell me the correct IUPAC name of the following compound?
long answer. Most of you have correctly identified the ligand. That's not true. We did all the rules for the IPSC. Whenever a neutral is ligand is neutral, it ends with normal name. If it is a negatively charged ligand, it ends with O. And if it is a positively charged ligand, it ends with IUM. So are you considering NO to be a neutral ligand or a positively charged ligand? Tell me. Are you considering NO to be a neutral ligand or positively charged ligand? Positive charged ligand. So when you consider NO as a positively charged ligand, then how can you write nitrosyl? So it should be pentaqua nitrosonium, not nitrosyl. अगर ये नाइट्रोसिल होता, जीरो ऑक्सीजन स्टेट होता, तो आयरन का ऑक्सीजन नंबर कुछ और हो जाता. बट यू आर राइट, NO इज इन +1 स्टेट, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट √15 आ रहा है. तो पेंटाक्वा नाइट्रोसोनियम, उसके बाद वेदर यू राइट आयरन और फेरम, आई डोंट बॉदर, दोनों सेम मीनिंग है. आयरन 1 सल्फेट. Whenever a ligand is a positively charged ligand, वो बहुत रेयर होता है, वहां पे always you consider that to be a plus ligand, positive charge. And if it is a positive charge ligand, its name should always end with IUM. Got it? Got it, all of you? Yes. Now we are coming to the last part, the weight test for basic radicals. If you have done in your college, you will understand the basic radicals जो identify होता है, they are identified by separating them into certain groups. But यहाँ पे जो ग्रुप्स का नंबरिंग होता है और नेम होता है, कौन सा मेटल कौन सा ग्रुप में आएगा, it has nothing to do with the periodic table. It is basically the concept of solubility product. It is basically the concept of solubility product. For example, if you have an ion A plus in aqueous solution, and if you add B minus, so that AB becomes a precipitate. So what is the condition for precipitation? The ionic product must exceed the solubility product.
So if the charge is A plus and B minus, then the amount of A plus is already fixed. Now when you add B minus, the precipitation will only occur when the product of the ions exceeds the Ksp of what? AB. तो अगर सोल्यूशन में तुम्हारे पास मल्टीपल आयंस है ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और इसमें तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डी माइनस ऐड कर दो और इनका कंसेंट्रेशन भी फिक्स है, कुछ अमाउंट है, तो ऑब्वियस कॉमन सेंस कहता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आयनिक प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू भी मोर और लेस फिक्स ही होगा, बिकॉज इसका कंसेंट्रेशन भी फिक्स है, इसका भी फिक्स है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ए डी बी डी और सी डी प्रोड्यूस होगा, इस पे कॉमन सेंस कहता है जिसका केएसपी लो होगा, जिसका केएसपी रिलेटिवली लो होगा, वहां पे द आयनिक प्रोडक्ट हैज गॉट हायर चांस टू एक्सीड द केएसपी। दैट मींस इन अ मल्टीपल आयनिक सिस्टम, when you add a certain chemical, that salt will be precipitated, जिसका KSP क्या होता है, on the lower side होता है। जब भी वो लोअर साइड में होगा वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करके उसको निकाल लेंगे। तो जब हम उसको निकाल लेंगे, दोज आर कॉल्ड द ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स पे डिफरेंट कैटायंस प्रेसिपिटेट होता है, और हमारा प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई प्रेसिपिटेट होगा उसको फिल्टर करके निकाल लो, और जो बाकी आयंस प्रेसिपिटेट नहीं हुआ उस पर दूसरा केमिकल डाल के उसको प्रेसिपिटेट करते रहो। लाइक दैट द कैटायंस विल बी सेपरेटेड वन बाय वन। तो इसमें जो भी कैटायंस हमारा सिलेबस में है, मैं पहले सभी का नाम लिख रहा हूं, और हर ग्रुप का जो रिएजेंट होता है, जैसे ये इसको रिएजेंट कहा जाता है जो हम डालते हैं, इसको कहा जाता है ग्रुप रिएजेंट। ये कौन सा होता है हमें देखना है, और साथ में कुछ, क्योंकि आयनिक का कंसेप्ट है, हम क्या किसमें कौन सा केमिकल्स ऐड करते हैं तो उसके बारे में भी देखना है। ये जानने के बाद प्योरली केमिकल रिएक्शंस का सवाल है कि कौन सा ग्रुप पे कौन सा मेटल होता है, वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, वो मैं पूरा बताऊंगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ weight test for basic radicals. The cations are separated into groups and the groups are formed based on their Ksp values. तो Ksp जिसका लो होता है वो पहले गिर जाता है, करते करते यू मूव टुवर्ड्स अ कंपाउंड जिसका रिलेटिवली Ksp ऑन द हायर साइड होता है। एंड फॉर एवरी ग्रुप देयर इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट जिसके थ्रू हम प्रेसिपिटेशन करते हैं। यहां तक क्लियर? Yes. Clear all of good. Now जो जो कैटायंस मेरा सिलेबस में है ऑफिशियली, मैं सबका नाम यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। दिस इज द टोटल लिस्ट फॉर कैटायंस। उस पे हमारा जेई सिलेबस में कैडमियम नहीं है, ये तीनों नहीं है, और स्ट्रोंशियम सिलेबस में नहीं है।
नाउ मैंने प्रिंसिपल क्या बोला, सपोज करो ये जितना भी कैटायंस है, all the cations are present in a large beaker in the water soluble form. So अगर मुझे कोई कैटायन को आइडेंटिफाई करना है तो मैंने क्या बोला, ग्रुप रिएजेंट डाल के उसको हम प्रेसिपिटेट करेंगे. तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रिएजेंट डालते हैं दैट इज HCl solution, obviously of a particular molarity, we add HCl solution. Now with your knowledge, tell me, if all are present in the form of cations, once you add HCl, don't you feel all of them will be converted to the respective chlorides? Yes. But वही chloride precipitate होगा, वही metallic chloride precipitate होगा जिसका KSP क्या होता है, रिलेटिवली लो है, जिसका KSP रिलेटिवली लो है. जैसे तुम जब Cl HCl डालोगे, कैल्शियम भी कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम भी सोडियम क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर भी सिल्वर क्लोराइड बनाएगा. पर ये जो 3 कैटायन मैंने अलग से बाएं तरफ लिखा, ये वो है कंपाउंड्स जिसका क्लोराइड्स का KSP क्या होता है, लो होता है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज द वैल्यूज, बट जस्ट फॉर योर क्लैरिटी आई एम सेइंग, जैसे KSP ऑफ AgCl 10⁻⁻10 होता है, KSP ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड 10⁻⁻18 होता है. ये सब लो KSP का होता है, लेड का भी लो ही होता है. That means as soon as you add HCl, try to understand, if you get a precipitate, what does it confirm? That cations of group 1 are present. इतना पता चलेगा, cations of group 1 are present, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप 1. और अगर हमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिला, उसका मतलब cations of group 1 are absent. So what are we supposed to do? We have to carry on the experiment after that. But if I get a precipitate, that does not mean बाकी cations नहीं है. इससे ये ensure हुआ है cations of group 1 are present. So immediately what am I supposed to do? Filter. जब हम filter करेंगे, there will be 2 parts, residue and filtrate. What does the filtrate contains? All cations, जो भी cations है, other than group 1. Am I right? Group 1 का cations तो गिर गया है, और यहाँ पे कौन होगा, group 1 elements in the form of their chlorides, right? Noted? नोट कर लो. Noted? Yes. Now, ये जो precipitate हुआ, if you get a precipitate, that means cations of group 1 are present. Now the question is, how do I know which cation is present? Now there are 2 things. When you carry on the experiment in lab, you are doing it on your own. So I think you can easily see the color of the precipitate. That means to identify the cation, the color of the precipitate plays a very vital role. From this, we can identify the cation.
इसमें दो डिफिकल्टी आ सकता है। एक तो प्रेसिपिटेट का कलर सेम है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, या दूसरा तुम IITG एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे। सो इवन इफ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज डिफरेंट, JEE may not give you the color. Instead, they will write down some chemical reaction जिसके थ्रू तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो रेसिड्यू में कैटायन फॉर्म हो गया, इस पे कौन सा कैटायन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हर कैटायन का जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है, इंडिविजुअल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो अब हमें देखना है। कैसे? नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, ये जो तीन कैटायन ग्रुप 1 का मैंने बताया, ग्रुप 1 का 3 कैटायन मैंने बताया, इन तीनों कैटायन का कलर व्हाइट होता है। So even if the color is given to you, you cannot identify. तो what we do, ये जो तीन सॉल्ट है जो फिल्टर पेपर के ऊपर है, उसको अलग कर लो या कुछ भी कर लो, करके उस पे एमोनिया डाल दो। एमोनिया इज सच अ रिएजेंट which behaves differently with respect to all the three cations. इन तीनों के साथ एमोनिया का रिएक्शन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने प्रेसिपिटेट में एमोनिया डाला, तो यू विल हैव ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स, इज वन पॉसिबिलिटी। तो अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व किया, देन वी कैन कंफर्म सिल्वर इज प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलरेंस रिएजेंट पढ़े हो ना, यही तो होता है वो। दिस वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड, गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऐसा नहीं कि एमोनिया से ही होता है। आई एम टेलिंग यू द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। एंड थर्ड वन, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, द व्हाइट प्रेसिपिटेट टर्न्स ब्लैक because when you add ammonia to Hg2Cl2, it forms mercury, जो डार्क ग्रे कलर का होता है, ग्रे या ब्लैक,
along with the formation of, यही होता है तुम्हारा ग्रे या ब्लैक कंपाउंड। सो देखो एमोनिया अच्छा केमिकल यहाँ पे क्यों है, बिकॉज ऑल द थ्री कैटायंस क्या होता है, आर बिहेविंग डिफरेंटली टुवर्ड्स एमोनिया। तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई केमिकल ऐड करना चाहिए जहां पे टोटल डिफरेंट फिनोमेना होता है। तुम कहोगे सर एमोनिया छोड़ के और कोई क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं? यस, पॉसिबल है, पर सब समय सबको डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते हैं, सबको हर समय सबके साथ नहीं कर सकते। और एक तरीका है, ये जो प्रेसिपिटेट है, इंस्टेड ऑफ एमोनिया यू ऐड एक्सेस NaOH, बिकॉज जेई कौन सा देगा आई डोंट नो, इसलिए जहां जहां पे डिफरेंस होता है वो मैं बता दे रहा हूं। जब एक्सेस NaOH डालते हो लेड में क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट which dissolves on adding excess। towards NaOH। Hg2 2+ में होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। और सिल्वर में होता है तो ऐसा एक क्वेश्चन जेई एग्जाम में एक बार एडवांस में पूछा गया था, सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड होता है, लेड का जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होता है और सिल्वर का होता है, इसमें कौन सा कंपाउंड एक्सेस NaOH में सॉल्युबल होता है? तो इफ यू लुक एट द लैंग्वेज, कौन सॉल्युबल होता है? लेड। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर कैटायन के बारे में मैं दे रहा हूं, इसको काइंडली नोट कर लो। गॉट इट? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। मतलब यही इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, ये हो गया ग्रुप 1 के बारे में। नाउ once we are done with group 1, if we get a precipitate then only we'll proceed for group 1। तो मान लो मुझे प्रेसिपिटेट मिला, तो मैंने ये सब टेस्ट करके ग्रुप 1 में कौन सा कैटायन है वो आइडेंटिफाई हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में कौन कौन सा कैटायन है? ऑल कैटायंस एक्सेप्ट ग्रुप 1, am I right? The filtrate contains all cations except group 1। Now let's proceed with the rest of the filtrate। So if somebody asks you what is the reagent for group 1, what is the reagent for group 1, it has to be a very simple, कौन सा? HCl solution। उसका एग्जैक्ट मोलबिलिटी तुम्हें लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो डाइल्यूट HCl ही होता है। एक्चुअल जो ग्रुप 1 का रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl ही होता है, 2 से 4 मोलर के बीच होता है, बट यू कैन जस्ट राइट डाइल्यूट HCl, राइट। अब ग्रुप 1 के बाद फॉर which group should I proceed? We have to proceed for group 2। तो ग्रुप 2 का जो रिएजेंट है, फिल्ट्रेट है, यहां पे हम क्या डालेंगे? ग्रुप 2 का जो रिएजेंट है। व्हाट इज द रिएजेंट फॉर ग्रुप 2? ग्रुप 2 का रिएजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड
इन एसिडिक मीडियम, और एसिड भी HCl ही होता है। तो when you add H2S in acidic medium, all metals present, all metal ions present will be converted hopefully you have understood this. हर ग्रुप में वही प्रेसिपिटेट होगा जिसपे उसका जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का KSP कम होगा। दैट्स द फंडामेंटल रीजन। नाउ जितना भी मेटल सल्फाइड्स होता है, जितना भी मेटल सल्फाइड्स होता है उसपे कॉपर, लेड, बिस्मथ, मरकरी, मैंने एक लिखना भूल गया ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 का रिएजेंट डाइल्यूट HCl है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। जो तुमने कैटायन का लिस्ट बना है उसमें मरकरी का +2 मिस हो गया था, वो लिख लो। जो भी है, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब सल्फाइड्स होता है। साथ पे ये भी होता है। ये जो मैंने टोटल सल्फाइड्स का नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, ये ग्रुप 2 का सल्फाइड्स है, और ये है ग्रुप 4 का सल्फाइड्स। 4 में हम बाद में आएंगे। बट अनफॉर्चुनेट क्या है, ग्रुप 2 का जो सल्फाइड्स है और ग्रुप 4 का जो सल्फाइड्स है, दोनों का ही KSP क्या है, बाकी सल्फाइड्स का कंपैरिजन में लो है। बट दोनों का सेम वैल्यू नहीं होता है। जो ग्रुप 4 का सल्फाइड्स है, जो ग्रुप 4 का सल्फाइड्स है, जिसका नाम मैंने तुम्हें अभी रेड कलर से लिखा है, इसका KSP अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻16 से 10⁻⁻24 के आसपास होता है। ये होता है रेंज। बट ये जो सल्फाइड्स है, इसका KSP वेरी वेरी लो होता है, वेरी वेरी लो होता है इनका KSP का वैल्यू। जैसे कॉपर, लेड, ये सब का वैल्यू -30 से स्टार्ट ही होता है। इनफैक्ट जितना मुझे याद है, मरकरी या बिस्मथ, ये सब का KSP -70 तक पहुंच जाता है। सो व्हाट वी कैन से, ग्रुप 2 का सल्फाइड्स का KSP वेरी लो है, यहां से लेके -60 तक जाता है, 60-70 जो भी है। और इसका KSP हाई है। हाई मतलब इसका कंपैरिजन में हाई है, बट है तो लो वैल्यू। तो तुम अगर ध्यान से समझने इस बात को, दिस इज प्योर आयनिक। So if you don't maintain a proper concentration of S minus, if you just maintain a very high concentration of S minus, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसका आयनिक प्रोडक्ट भी इसका KSP को एक्सीड करेगा, इसका आयनिक प्रोडक्ट भी इसका KSP को एक्सीड करेगा। तो दोनों क्या होगा, साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हमें बहुत केयरफुली करना है। हमें क्या करना है, हमें आयनिक प्रोडक्ट को ऐसा रखना है, we have to keep the ionic product in such a way so that the lower value is exceeded but not the higher value.
तो ये कैसे करोगे? इनका कंसंट्रेशन तो पहले से ही फिक्स है आयंस का, तो जो ओनली चेंज तुम कर सकते हो वो किसका कंसंट्रेशन में? सल्फाइड का। तुम्हें सल्फाइड का हाई वैल्यू चाहिए या लो वैल्यू चाहिए? सल्फाइड का लोअर कंसंट्रेशन चाहिए, बिकॉज हायर होने से ये भी गिर जाएगा। तो H2S को अगर तुम जाके बोलोगे, तुम कोई वीआईपी तो हो नहीं कि तुम्हारा बात सुन के H2S स्लोली डिसोसिएट करेगा। उसको जैसे डिसोसिएट करना है वैसा ही डिसोसिएट करेगा। बट अगर उसके सामने तुम एक कॉमन आयन रख देते हो, कॉमन आयन, तो क्या होगा? क्या होगा कि वो कॉमन आयन को देख के इसका जो डिसोसिएशन ऐसा करके हो रहा था अब वो कम हो जाएगा। सो व्हाट विल HCl डू? इट विल सर ग्रुप 4 में एक ZnS के जगह MnS होगा ना? हाँ, वो दो बार ZnS लिखा, MnS हो, तो बात सेम हो गया था। फंडामेंटल्स क्लियर हो गया? मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज जो सल्फाइड का KSP, जैसे सोडियम सल्फाइड, वो तो प्रेसिपिटेट है ही नहीं, उसको लेकर रिस्क नहीं है, बिकॉज इसका KSP भी लो ही है। पर इसका क्योंकि और भी लो है, तो मैंने ऐसा सल्फाइड का कंसंट्रेशन मेंटेन किया लो वैल्यू, सो दैट इसको एक्सीड करे बट इसको एक्सीड नहीं करे। तो ग्रुप 4 का जो सल्फाइड्स है वो एसिडिक कंडीशन में प्रेसिपिटेट नहीं होगा। कौन प्रेसिपिटेट होगा? ग्रुप 2 सल्फाइड्स। सर Pb+2 तो ग्रुप 1 में आता है ना? वो 2 में भी आता है, मैं बता रहा हूँ क्यों। पहले इसको नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। लेट 2 बार आता है।
Noted? Yes, sir. Now, ग्रुप 2 में जो कैटायंस है, मैं उसका पूरा लिस्ट बना रहा हूं. वो मरकरी +1 था, ये +2 है. इसमें जो जो नहीं है वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया. उसके जिसको मैंने क्रॉस लगा दिया वो हमारा सिलेबस पे नहीं है. बट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब तुम H2S डालते हो, अगर इन में कोई भी एक कैटायन होता है तो वो अपना सल्फाइड फॉर्म में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. पॉइंट नंबर 1. तो ये जो दो अलग अलग कैटायन है, ये दोनों ही ग्रुप 2 का है. इसको ग्रुप 2A कहा जाता है और इसको ग्रुप 2B कहा जाता है. बी हमारा सिलेबस पे नहीं है, तो है तो ए, और ए में भी कौन कौन है, दिस 4. तो हमारा इमीडिएट काम क्या होता है, वी शुड नो कि ये जो कंपाउंड्स है इसका प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, तभी तो हम आगे चल पाएंगे ना. तो एक एक करके प्रेसिपिटेट का कलर मैं सबका ही लिखवा दे रहा हूं, बट हमें मेनली इन चारों को याद रखना है जो तुम्हारा मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है. कलर देखो, तुम्हें समझ में आ ही जाएगा. क्या लिखा कलर्स? ऑल ब्लैक. तो आईआईटी यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देता है, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. लोग सोचते इससे कुछ पता चल जाएगा. दे आर वेरी क्लेवर. जहां पे लिखना चाहिए वहां पे नहीं लिखेगा, यहाँ पे पूरा ब्लैक. ये होता है येलो. इसका जो सल्फाइड है ये भी येलो होता है, +4 वाला. आर्सेनिक का भी येलो होता है. एंटीमनी का ऑरेंज होता है, और ये होता है ब्राउन. बट इनको लेके हमें अभी डील नहीं करना है, हमें इन चारों को लेके करना है. सो एज पर द जेई सिलेबस, if on adding H2S in presence of HCl, H2S in presence of HCl, you get a precipitate. That means either copper or lead और बिस्मथ और मरकरी. इसमें कोई एक प्रेजेंट है, ये तो भी नहीं है ना. अब सवाल है लेड कहां से आ गया. अगर तुम ग्रुप 1 का KSP का वैल्यू चेक करोगे, मैंने 2 कंपाउंड का KSP लिख के दिया था, कितना कितना था देख के बताओ तो. बताओ कितना कितना लिख के दिया था. सिल्वर का लिख के दिया था, देख के बताओ कितना था. 10⁻⁻10. और मरकरी का -18 था. Am I right? Yes, sir. And now look at the KSP of lead. Don't you feel it is on the higher side as compared to the other two? Number one. And secondly, PbCl2 has a very unique property that it is soluble, highly soluble in warm water. It is highly soluble in warm water and insoluble in cold water. तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो तुमने HCl डाला और कभी भी तुम्हें थोड़ा सा हीट करने का जरूरत पड़ा, थोड़ा सा, तो क्या होता है, जो PbCl2 प्रेसिपिटेट हुआ है वो PbCl2 क्या होता है, सॉल्युबल होके
फिल्ट्रेट में चला जाता है, बिकॉज एक तो उसका केएसपी इतना लो नहीं है, दूसरा क्योंकि वार्म वाटर में उसका सॉल्युबिलिटी होता है थोड़ा सा, मतलब इट इज क्वाइट हाईली सॉल्युबल इन वार्म वाटर. As it is highly soluble in warm water, so there is a possibility that the PbCl2 that you have precipitated, from that a part of lead can pass on to the solution. So इसलिए lead को ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 में भी lead मिल जाता है, बट यहाँ पे ये फुल्ली प्रेसिपिटेट होगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इनका जो सल्फाइड्स होता है, इनका केएसपी क्या होता है, वेरी लो. और दूसरी बात है, वार्म वाटर में PbCl2 इज सॉल्युबल, नॉट ऑल लेड सॉल्ट्स. इसलिए यहाँ पे अगर लेड थोड़ा बहुत पास ऑन कर भी जाता है, यहाँ पे वो 100% प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. Noted. Yes, sir. Now, once this precipitate is formed, it confirms that इन चारों में कोई ना कोई एक कैटायन प्रेजेंट है, और जो फिल्ट्रेट बचेगा उस फिल्ट्रेट को लेके we'll proceed for the rest of the tests. Now, ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को हम एसिड डाल के वार्म करके दोबारा डिसॉल्व कर लेते हैं. मतलब ये जो प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर था, इसमें थोड़ा एसिड डाल के हम उसको रीडिसॉल्व कर लेते हैं, रीडिसॉल्व कर देते हैं. करके जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन को 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर देते हैं. 4 ही कैटायन है ना, और अब हर बीकर में या हर टेस्ट ट्यूब में हम हर कैटायन का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है,
नोटेड? यस सर। अच्छा, लेड क्लोराइड के बारे में somebody was asking me in the chat, क्या पूछ रहे थे? PbCl2 क्यों एग्जामिन करने में क्या दिक्कत है? अगर लेड मेरे पास ऑलरेडी ग्रुप 1 में है, उसका पार्शियल प्रेसिपिटेशन हुआ है, ठीक है, लेड तो कंफर्म हो गया, लेड है, बट हो सकता है उसका कुछ पार्ट पानी में दोबारा चला गया, इसके लिए मैं दोबारा सल्फर सल्फाइड फॉर्म में उसको प्रेसिपिटेट कर दे रहा हूँ, तो उसको दोबारा टेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? फुल्ली या पार्शियली दोबारा सॉल्युबल हो गया, इसलिए फिल्ट्रेट में आ गया, इसलिए मैं दोबारा उसका टेस्ट कर ले रहा हूँ, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट कौन था? ये हो गया, दोनों कॉपी कर लिया। नेक्स्ट थर्ड वन वाज मर्करी, ठीक है। मर्करी में यू ऐड अमोनिया, जब भी डालोगे मर्करी +2 में अमोनिया, +2 स्टेट में, इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, एक ध्यान से मेरा बात को सुन लेना, जब तुमने मर्करी +1 में अमोनिया डाले थे, जो मैंने पहले दिखाया था ग्रुप 1 में, उस पे देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ था। मर्करी जो ब्लैक था, उसके साथ ये भी बना था, बट ये क्योंकि व्हाइट पीपीटी होता है और ये होता है ब्लैक पीपीटी, इसलिए ब्लैक का प्रेजेंस पे वी कांट सी द व्हाइट कलर, पूरा ब्लैक ही लगेगा, इसलिए वो ब्लैक लग रहा था। बट जब तुम मर्करी +2 में लोगे और उस पे एमोनिया डालोगे, उस पे कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता है, बिकॉज मर्करी मैक्सिमम स्टेट पे है, तो वहां पे यू गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हो गया मर्करी का कंफर्मेटरी टेस्ट। और भी टेस्ट होता है, और भी टेस्ट होता है, तो मर्करी सोल्यूशन में पोटेशियम क्रोमेट डाल दो, you will get mercury chromate. I think if you have slight bit idea about practical chemistry, most of the chromates जिसका precipitation होता है, they are yellow in color, most of the chromates, except two, mercury chromate and silver chromate. They are क्या? red in color. बाकी जितना भी क्रोमेट्स प्रेसिपिटेट होता है या क्रोमेट का सोल्यूशन होता है, सब येलो होता है। या सोडियम क्रोमेट येलो होता है, लेड क्रोमेट येलो होता है, बट वो प्रेसिपिटेट है। क्रोमेट्स आर ऑलवेज येलो एक्सेप्ट दिस टू क्रोमेट्स, दे आर रेड इन कलर। तो मरकरी में अमोनिया नहीं डाल के ये डाल के भी टेस्ट कर सकते हो। कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब है तुम कोई भी टेस्ट करके उस कैटायन को कंफर्म करोगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट। डन? Yes, sir. नाउ कम्स द लास्ट one टेस्ट फॉर, second. हाँ लिख लो लिख लो। वो डायरेक्ट रिएक्शन लिख के देता है, अ सॉल्ट सॉल्यूशन Done, sir. ऑन, हाँ HgCrO4 होगा, राइट राइट। वो क्या करेगा, लिख के डायरेक्ट देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन एडिंग H2S इन एसिडिक मीडियम प्रेसिपिटेशन ऑकर्स। इस लैंग्वेज से तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा ये ग्रुप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 4 ऑप्शन होगा ABCD, उस पर अगर एक ही ग्रुप 2 का कैटायन है तो कहानी खत्म, बट ऐसा होगा नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो अब उसके बाद वो क्या करेगा, इसको एसिड में डिसॉल्व करेगा, और जैसे मैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूँ, एक ये बता देगा स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट, उससे तुम्हें पता करना पड़ेगा वो कौन सा कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं।
वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है. Last, coming to bismuth. After dissolving in the precipitate in acid, we have converted this to a solution. इसमें you add Ki. ये बिस्मथ का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. सॉरी, गलती हो गया, ये ब्लैक होगा. सॉरी, हाँ, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है. एंड व्हेन यू डिसॉल्व, नोटेड. यस सर. अब ये जितना भी कैटायंस तुम देख रहे हो सभी इंपॉर्टेंट है. यू कांट आस्क मी सर कौन सा एग्जाम में पूछेगा, बट इसमें तुम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हो, तो शायद तुम्हें मालूम है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, उसमें कॉपर भी आता है, ऑब्वियसली आता है. तो इसलिए कॉपर क्योंकि वहां पे भी है और सॉल्ट एनालिसिस में भी है, इसलिए कॉपर का जो मैंने टेस्ट बताया, ये सब तो कॉपर के बारे में सब लोगों को मालूम है जो मैंने अभी तक बताया. कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, ये तो मालूम होना चाहिए. बट इन एडिशन टू दिस कॉपर सल्फेट का कुछ और रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैं एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ. तुम लोग पहले ट्राई करोगे और हो जाता है तो अच्छी बात है. मैं कॉपर सल्फेट नहीं के कॉपर +2 लिख रहा हूँ. बात एक ही है. तुम कहोगे सर आप कॉपर सल्फेट ही लिखिए, तो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ही लिख रहा हूँ. You have to write down the products formed. Number 1, ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है. ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट कॉपर का रिएक्शन है Cu2+ का. इतना फेमस है दे कीप ऑन आस्किंग इट ईयर आफ्टर ईयर. एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. कॉपर में जब एक्सेस NH4OH डालते हो, वी ऑलवेज गेट दिस कंपाउंड, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या है, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट. कॉपर +2 ऑलवेज D9 होता है. D9 में डी में कोई वैकेंसी नहीं होता है, but as ammonia is a strong field ligand, one of the d electrons from 3d orbital jumps to 4p, so that one d orbital becomes vacant, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2.
और शेप क्या होता है, बट क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, √3। बट हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है, dsp2 होता है।